Good morning, class. Welcome back again to your physics class, beta. Last time, I think we were discussing about the vector algebra, and in the vector we discussed about very small things, that what is vector, what are the scalar quantities, what are the difference between vector and scalar. Then later on we discuss about the how we represent a vector, means the symbol, the representation of vector. Then later on we discuss about the types of vector. There are so many types of vector, means you can say unit vector, which is very important, unit vector, null vector, the collinear vector, coplanar vector, equal vector, parallel vector, anti-parallel vector. These were the basic types of vector which we discussed in the last video. So today we are going to discuss about the addition, the mathematics of the vectors. Means, as I told you that the vectors in one of the properties, I told you that vectors are not added, they were not multiplied like a simple algebraic rules. जैसे हम simple mathematics में algebra लगाते हैं, हम वैसे vectors को add या subtract नहीं कर सकते. Vector addition, vector subtraction, vector multiplication is totally different. वो पूरा अलग से उनकी दुनिया है. So that is what we are going to discuss today, how we add simply vectors, how we subtract the vectors, and how will we multiply the vector. So first of all we will discuss about the addition of vector. Initially we will do the addition of vector. Addition of vector. So there are two methods by which we can add the vectors. One is the graphical method or direct method, graphical method, or it is also called direct method. But this method is applicable only when the number of vectors are very small. For example, 1, 2, 3 or something like that. Okay, one is the graphical method and the another one is the analytical method. Analytical method, which is basically mathematical rule. Is it? Sometimes it is called mathematical method. So there are two rules with the help of which, or not rule exactly, there are two ways by which we can add two vectors. For example, I also talk about this graphical method in a very nutshell in the last video. Let me elaborate that point, because now we are going to do perfect addition, how we add the two vectors. Suppose that there are two vectors, vector A and this is the vector B, and we want to add these two vectors. So I told you a very basic property about the vector, that the vectors can shift parallel to itself. That will not make any kind of change in the vector quantity. यही आपसे कहा था कि किसी वेक्टर को आप उसके पैरेलल क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, और उसी मेथड का यूज़ करना है. पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे क्या, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, एंड सेकेंड थिंग हम यूज़ करेंगे जो आपको मैंने ट्रिक सिखाई थी, मीन्स हेड टू टेल और टेल टू हेड. यही मेथड हमें यूज़ करना है. लेट मी शो हाउ. Suppose that we want to add these two vectors, vector A and vector B. Now you can see we can add two vectors only if the head of one vector is combined with the tail of the other vector, or the tail of one vector combined with the head of the other vector. Okay, you can see over here, this is the vector A. Now this vector A can be redrawn like this. Okay, now this vector B can shift parallel to itself. Now this vector B can be shifted like this one. This is the vector B, this is the vector A. Now you can see the head of the vector A is coincided with the tail of the vector B. We just do two things, shifting of the vectors and then head tail or tail head method. Now these two vectors are combined like this. Now in vector addition, the addition of vector is pronunciated not as a addition or a result, it is pronunciated as resultant. The two vector addition or subtraction may be resultant, means result of the vector A and vector B combinedly. What is the combined effect of these two vectors? Okay, resultant means what? Combined effect of vector, either addition or subtraction, maybe it is anything. Okay, so this terminology we are going to use throughout the physics lecture in the class 11th and 12th, and if in the higher education even, we use the resultant term. Now resultant is nothing else, it is just the combined effect of the vectors.
when they are added vectorally, when they are subtracted vectorly, what is the result? That result is called what? Resultant. Okay, now the resultant of these two vectors will be given by the third vector, which is drawn like this. What I told you, first of all we have to arrange our vectors by shifting and by using head tail or tail head method like this, so that the tail of the one vector coincides with the head of the other vector. Then we will join the tail of the first vector to the head of the last vector. This vector r is called the what? The resultant of the vector a and vector b. It may be written like this: vector a plus vector b. This is the vector addition. Now what is the value of this r? That is different thing, as I told you. वो अलग बात है. रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी उसको निकालने के कुछ मेथड्स दिए गए हैं. जैसे एक ट्रायंगुलर मेथड है, ट्रायंगल मेथड जिसको आप कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन. फिर एक पॉलीगन लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, बहुत सारी चीज़ें, हम उसके बारे में बात करेंगे बाद में. बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि जिन वेक्टर्स को जोड़ना है आप पहले उनके टेल हेड उन सबको एक साथ लाएंगे और फिर उसके बाद उसको ऐड करेंगे. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक और देखो. मान लो आपको बहुत सारे वेक्टर्स दिए गए हों, मोर देन 2 वेक्टर्स हो, बहुत सारे वेक्टर्स हों. सपोज दैट कुछ ऐसा आपको दिया गया हो. आपके टेक्स्ट बुक का ही मैं एग्जाम्पल एज इट इज़ ले रहा हूँ. सपोज दैट दिस इज वेक्टर ए, दिस वन इज द वेक्टर बी, दिस वन इज द वेक्टर सी, दिस वन इज द वेक्टर डी, and this is the common intersection point. Do you know what does this point O called? This point O is called intersection point, and these kind of vectors are called beta concurrent vector. What they called? Concurrent. बहुत सारे वेक्टर्स हैं. जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको उन सारे वेक्टर्स से परिचय आपका कराता रहूँगा. I'll introduce all those terms. क्या होते हैं? If there are n number of vectors which are intersecting at any point, or the line of action of that vector is intersecting at any point, then that kind of vectors are called what? Concurrent vector. अगर बहुत सारे ऐसे vectors हैं जो ऐसा आपको लग रहा है कि वो exactly किसी point पे जाके coincide कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे हो रहा था, इस पॉइंट पर ये सब आगे मिल रहे थे, या इन वेक्टर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन हो वो आगे पीछे कहीं स्पेस में जाके कोइंसाइड कर रहा होगा, ऐसे सारे वेक्टर्स को आप कॉन्करेंट वेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स आपको पता है ये क्या है? एक वेक्टर है. इट इज अ वेक्टर. नाउ वेदर इट इज कॉन्करेंट और नॉट, जस्ट चेक इट. सपोज दैट एट दिस पॉइंट force F1 is acting along this direction, the force F2 is acted along this direction, and force F3 is acted along this direction. Now all these forces has different direction, different magnitude. That is not issue. But the problem is at this point O, what is the line of action of this force? This is the line of action of the force F2. This is the line of action of force F3. And this is the line of action of force F1. Now you can see at the point O, the line of action of these forces are coinciding each other, intersecting each other. So either the force or the vector quantities intersecting at any point, or the line of action of those vectors are intersecting that point. That kind of vector is called what? Concurrent vector. Okay. So suppose that ये आपका question है, जो question आपको दिया गया है, and you want to add all these vectors. You want to add all these vectors. हम एक साथ नहीं ऐड कर पाएंगे. हम क्या करेंगे? दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, A, B, C, D, and what about this one? Nothing, ये था ही नहीं भाई, एक्स्ट्रा बन गया था ये. हम क्या करेंगे? दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर उनके एडिशन से जो भी रिजल्ट निकलेगा उसको हम तीसरे वेक्टर पे ऐड करेंगे. ठीक, जैसे मान लो हमने A और B को ऐड करना चाहा, तो पहले A और B को ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर हम उसको ऐड करेंगे किसके साथ? C के साथ, फिर हम उसको ऐड करेंगे किसके साथ? D के साथ. या आपकी मर्जी, आप पहले D और C को भी ऐड कर सकते हो, दैट इज योर कंसर्न, जिसको भी ऐड करना चाहो. अब मैंने आपसे कहा मुझे मान लो A और B को ऐड करना है. A और B को ऐड कैसे कर सकते हो? पहले तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर शिफ्टिंग करा सकते हो तो फिर ये हेड टेल या टेल हेड का अरेंजमेंट आपको दिखना चाहिए. अगर इस पॉइंट O को देखो तो इस पॉइंट O पर B की टेल है और A की भी टेल बैठी हुई है, तो सिंपली तो इसको ऐड कर नहीं सकते हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको अरेंज करना पड़ेगा. अगर इस वेक्टर B को इसके पैरेलल मूव करके यहाँ तक लेके आ जाओ तो काम बन सकता है. देखो मैं यहाँ बनाता हूँ. दिस इज पॉइंट O. Now this is the vector A as it is. Then दिया. Now we will shift this vector B parallel to its. This is the head of the vector B. Now you can see the head of the vector B is coincided with the tail of the vector A. अभी कहानी हमारी कुछ बनती हुई दिख रही है, ठीक है. अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? अभी मैं बना दे रहा हूँ
आपको अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आएगा तो इसका एडिशन अपने आप कर लेंगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट हो गया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। मैंने क्या बताया था, मैंने इसको शिफ्ट किया इधर, ये यहीं पे रह गया था, ठीक है। तो एक वेक्टर का हेड, लास्ट वेक्टर का टेल, दोनों को मिला दीजिए आप, तो ये हो गया आपका क्या, रिजल्टेंट। दिस विल बी द रिजल्टेंट, ठीक। अब ए और बी को हटा दो, इसका रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट मिल गया इसका, आर ए बी। आर ए बी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब क्या बचा, सी, और ये पॉइंट क्या था आपका। अब इस पूरे के पूरे पॉइंट को जैसे मान लो इसको मूव करा के ओ तक ले गए, मैं यही लिख ले रहा हूँ ओ। अब ओ पर देखो कौन सा वेक्टर है, सी, ये ऐसे जा रखा है। अब फिर देखो टेल कौन साइड हो रही है, नहीं हो सकता ऐड। हम इस वेक्टर सी को इसके पैरेलल शिफ्ट करा सकते हैं, यहाँ तक ले आओ, यहाँ तक ले आए, ये हो गया वेक्टर सी, यहाँ से हटा दिया। अब वेक्टर आर ए बी और वेक्टर सी का रिजल्टेंट थर्ड साइड हो गई इसकी, बात खत्म। अभी इसको बेटा दो, आर ए बी और आर ए बी सी का ये हो गया रिजल्टेंट बेटा, आर ऑफ ए बी सी। बचा क्या, डी। डी किधर जा रहा था, इधर जा रहा था। अभी भी देखो फिर से प्रॉब्लम वही है, टेल मिल रहा है आपस में, प्रॉब्लम है। चाहो तो आर ए बी सी को इसके पैरेलल शिफ्ट कर लो, चाहे इसको इधर लेके चले जाओ, मर्जी तुम्हारी। मैं इसको इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ये ऐसा हो गया। दिस इज द वेक्टर डी, यहाँ से हट गया ओ। नाउ आर ए बी सी वेक्टर डी, इसका रिजल्टेंट ये हो गया। So this is the resultant vector of R, A, B, C, D. This is exactly how we add the vectors. Okay? हालांकि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, अभी जब आप लॉज सीख लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। अभी जो रिजल्टेंट आप निकाल रहे हो ना, आर ए बी, आर ए सी, आर ए बी सी डी, ये निकलेगा कैसे, तो इसके लिए कुछ रूल्स आपको दिए गए, ठीक। मैं एक बार आपको रूल्स सारे डिक्टेट कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, फिर उसका एनालिटिकल मेथड पढ़ेंगे। पहले ग्राफिकल मेथड सिंपली हम देख लेते हैं कि ऐसे सिंपल हम कैसे एडिशन करते हैं वेक्टर्स का, ठीक। So there are three rules with the help of which we can add the vectors directly. Rule number one, triangle law of vector addition. Remember, I had given the definition of vector. When I was telling you the definition of vector, I told you that vectors are those quantities which has magnitude, which has direction, and also which follow the law of vector addition. These are the laws of vector addition which we are going to discuss now. You can also call this laws of vector addition. Triangle law of vector addition बेटा क्या कहता है, सिंपल पहले सुन लो। Triangle law of vector addition says that if there are two vectors which are represented by their magnitude and direction by the two adjacent sides of a triangle, then the resultant of these two vectors will be given by the third side of the triangle taken in the opposite order. बहुत अंग्रेजी होगी, सुनो मतलब क्या है इसका। मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी। ये दो वेक्टर्स हैं। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स हैं जो मैंने लिया है, वेक्टर ए वेक्टर बी, और जिनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, ऑर्डर का मतलब टेल हेड वाला, देखो टेल हेड, अगले वेक्टर की टेल आई, फिर क्या आई है, टेल हेड, ऐसा ऑर्डर हो। इफ देयर आर टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो किसी ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल की तीसरी क्लोजिंग साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बट शर्त इतनी है कि वो तीसरी साइड अपोजिट ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब कि इस ट्राइंगल की ये हो गई बेटा तीसरी साइड, क्लोजिंग साइड यही तो हुई ना, दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर ये वेक्टर है, वेक्टर भी किसी दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी ट्राइंगल के, बट ये क्लोजिंग साइड है, इसको ऑर्डर उल्टा होना चाहिए। उल्टा होने का मतलब देखो, ये टेल हेड, जरा अरेंजमेंट का पैटर्न देखो, सीखो, टेल हेड। अब यहाँ फिर क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तभी तो ऑर्डर सेम होगा, टेल हेड। बट कह रहा है थर्ड साइड उल्टी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, हेड, यहाँ पे क्या आना चाहिए, टेल, मतलब ये कुछ ऐसा होगा। If this vector A, then vector B, then this is the resultant vector R, which is equals to vector A plus vector B. This is called triangle law of vector addition. Let me dictate one more time the definition. If the two vectors are represented by the two adjacent sides of a triangle by their magnitude and direction, then the resultant of these two vectors will be given by the closing side of the triangle taken in the opposite order. बात खत्म, ठीक है। This is called what? Triangle law of vector addition. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी इसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व कराऊंगा, अभी पॉलीगॉन लॉ में इसको प्रूव भी करा देंगे, ठीक। अच्छा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद नेक्स्ट है बेटा आपका जो रूल नंबर 2 है एडिशन का,
It is called parallelogram law of vector addition. Parallelogram law of vector addition. Now what does it say? It says if there are two vectors, vector A and vector B, or vector A and vector B, if the two vectors vector A and vector B are represented by their magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be given by the diagonal of the parallelogram. That's it. चलो इस पैरेललोग्राम को पूरा करें. आपको पता है पैरेललोग्राम में आमने सामने साइड्स पैरेलल होती हैं, so we can shift this vector A parallel to itself. It will not change anything. So vector A parallel to vector A like this. वेक्टर बी पैरेलल टू वेक्टर बी. हमने अपना पैरेललोग्राम सबसे पहले पूरा करना पड़ेगा. ये हो गया वेक्टर बी के पैरेलल वेक्टर शिफ्ट किया, वेक्टर ए के पैरेलल वेक्टर दिखा पैरेललोग्राम. अब सुनो स्टेटमेंट क्या कहता है. इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. दिस इज द रिजल्टेंट. क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो? चेक करो. पैरेललोग्राम इज नथिंग, इट इज जस्ट अ you can say practical application of triangle law. और दिखाएं कैसे. देखो वेक्टर ए टेल हेड, वेक्टर बी हेड टेल. थर्ड साइड ट्रायंगल की हुई कि नहीं हुई है, और थर्ड साइड जो ट्रायंगल की है वो ऐसे लेनी पड़ेगी आपको. देखो टेल हेड, तो हेड आ गया, टेल आ गया, ऑर्डर पलट गया, और ये रिजल्टेंट क्या आएगा? दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. यानी पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल लगा सकते हो. और देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी गिव्स व्हाट? दिस रिजल्टेंट. तो चाहे इसको ट्रायंगल लॉ समझ लो, चाहे पैरेललोग्राम से लॉ समझ लो, बात तो एक ही निकल के आ रही ना. इफ द टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू, if the two vectors are represented by the two sides of a parallelogram, then the resultant of these two vectors will be given by the resultant of the parallelogram. ऊपर से भी देख सकते हो. इधर देखो वेक्टर बी वेक्टर ए, दिस विल बी द रिजल्टेंट. देखो टेल हेड. तो थर्ड साइड जो ऊपर वाले ट्रायंगल की है वो क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर होनी चाहिए. देखो हेड आ गया. और ये रिजल्टेंट भी क्या देखा? देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. चाहे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो, चाहे वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो. देखो एक नई रूल तुमको यहाँ पता चला. अगर बेटा नीचे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखोगे तो ये निकल के आएगा वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. और अगर ऊपर वाले ट्रायंगल देखोगे तो वेक्टर आर निकल के आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ दैट द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर कम्यूटेटिव इन लॉ. कम्यूटेटिव है नहीं, चाहे a प्लस बी ऐड करो तब भी आर मिल रहा है, b प्लस ए ऐड करो तो भी आर मिल रहा है. इसका मतलब कह सकते हो दैट ये आइडेंटिटी आपसे पूछी जाती बोर्ड में, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव. चाहे आप a में b को ऐड करिए, चाहे b में ऐड करिए, फर्क नहीं पड़ता है. वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल सेम आएगी. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब अगर मान लो 1 2 3 10 15 20 ऐसे कोई हो तो, मतलब अभी तक तो आपको भाई दिखा कि दो वेक्टर्स को चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के ऐड कर लो, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के ऐड करो, काम आपका चल सकता है. बट व्हाट इफ देयर आर मोर देन 2 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन, देन हाउ वी विल ऐड? फॉर दैट वी हैव अ पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ लेट अस सी व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Rule number 3 or the law number 3 is polygon law. Rule number 3 says polygon law. Polygon as we know, बहुत सारी साइड्स हो ना, बहुभुज इसको हिंदी में कहते हैं, जिसको आप लोग पॉलीगन, पॉली मतलब बहुत सारी साइड्स होकर, तब कैसे करेंगे आप? चलो देखो, सपोज दैट एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, एक वेक्टर डी है, एक वेक्टर ई है. वेक्टर ई, डी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, वेक्टर ए बी सी डी, these are the vectors and we want to add these vectors. So neither we use triangle law nor use parallelogram law, although by arranging them we can use a triangle law, but how? So if you want to add these 5 vectors, then we use the polygon law. Now what does polygon law says? First of all we have to define it. So polygon law says that if there are more than 3 vectors which are represented by their magnitude and direction by the adjacent sides of a polygon taken in the same order, then the resultant of all these vectors are represented by the closing side of the polygon taken in the opposite order. और समझे?
पॉलीगॉन लॉ कहता है कि अगर आपके पास एक, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं, 3-4 वेक्टर्स, और आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप उनको एक पॉलीगन के फॉर्म में अरेंज कर लीजिए, वैसे ही हेड टेल हेड टेल हेड टेल, यानी सेम ऑर्डर में। फिर जो उस पॉलीगन की क्लोजिंग साइड होगी ना, दैट क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए था, इस वेक्टर बी को इसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, बिल्कुल, ये देखो ये आ गया वेक्टर बी, ठीक, टेल हेड मिल गया। अच्छा इस वेक्टर सी को इसके पैरेलल शिफ्ट कर लो बेटा, कुछ ऐसा, ये हो गया वेक्टर सी। इस वेक्टर डी को इसके पैरेलल शिफ्ट करके लाओ यहाँ तक, ये हो गया वेक्टर डी, और इस वेक्टर ई को इसके पैरेलल शिफ्ट करके लाओ यहाँ तक, ये हो गया वेक्टर ई। हटा दो इन सबको। भाई आप किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, नो इशू, नॉट एन इशू, प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से हो गया। अब क्या करना है, देखो पॉलीगन बना 1 2 3 4 5। नाउ इट्स क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, दैट इज द खेल। हेड सॉरी टेल हेड टेल हेड, जस्ट चेक द ऑर्डर पैटर्न, टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड। अब अगर इसी अरेंजमेंट में चलो तो यहाँ क्या आना चाहिए था, टेल आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, बट रूल ये नहीं कहता। रूल क्या कहता है, जो क्लोजिंग साइड है पॉलीगन की वो अपोजिट ऑर्डर की होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ नीचे टेल आएगा, यहाँ पे नीचे हेड आ गया, तो हेड हेड आ गया, ऑर्डर गड़बड़ हो गया। ऑर्डर कैसा किया, पलट दिया आपने। सो पॉलीगन लॉ सेज दैट इफ देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स व्हिच वी वांट टू ऐड, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज देम इन अ adjacent sides of a polygon taken in the same order, then the closing side of the polygon taken in the opposite order give the resultant of the vectors. That means this is vector r, this is vector r, which is equals to what, vector a plus vector b plus vector c plus vector d plus vector e, as simple as that। और प्रूव करें इसको, पॉलीगन लॉ को प्रूव भी कर सकते हो, देखो आसान है। इन सबको छोड़ दो, दो वेक्टर को ध्यान दो, वेक्टर ए वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी, टेल हेड। अगर ये दोनों वेक्टर ए और बी हैं तो किसी ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड को अगर लोगे अपोजिट ऑर्डर में तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही तो है ट्राइंगल लॉ। हटा दो इसको बेटा, इसका रिजल्टेंट मिल गया, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट मिल गया, तो इसको लेने क्या जरूरत, हटा दिया आपने। अब जरा देखो, वेक्टर ए प्लस बी ऐसा है, वेक्टर सी ऐसा है, तो इन दोनों का ऑर्डर आई थिंक सेम है। देखो टेल हेड, तो यहाँ से एक और ट्राइंगल बना सकते हैं और उसकी साइड अपोजिट कर देते हैं, टेल हेड, और यहाँ क्या आ गया, हेड, अपोजिट साइड हो गई। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए प्लस बी वन वेक्टर है, वेक्टर सी दूसरा वेक्टर है, इफ टू वेक्टर्स आर शोन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट। यानी ये हो गया रिजल्टेंट बेटा। अब की कितना आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये प्लस वेक्टर सी, इसको बेटा दो, कोई मतलब ही नहीं, कंबाइंड इफेक्ट मिल गया हमको। अब देखो ये दोनों भी तो किसी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स है और ऑर्डर सेम है, देखो टेल हेड, तो इसको भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, अपोजिट ऑर्डर का ले लो इस क्लोजिंग साइड को, वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी और प्लस वेक्टर डी। तो ये जो रिजल्टेंट आया वो कितना आएगा, इसका हटा दें, देखो इनका रिजल्टेंट मिल गया बेटा आपको। ये जो रिजल्टेंट आया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। नाउ अगेन यू सी टेल हेड हेड टेल, this is the closing side of the triangle taken in the opposite order, so this will be the resultant of these two vectors, that is this is the resultant r, which is equals to a plus b plus c plus d plus e. This is the proof of the polygon law. Okay, so these are the three laws with the help of which we can easily give the resultant of the vectors if we don't know the angle between the vectors. See, यहाँ पे जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी ले रहे थे, हमें उसके बीच का एंगल नहीं पता था, 30 है 40 है 60 है 90 है, वी डोंट नो। अगर एंगल दो वेक्टर्स के बीच का नहीं पता है आप, और तब आपसे कहा जा रहा है दैट प्लीज ऐड दीज टू वेक्टर्स और ऐड दीज थ्री वेक्टर्स, देन वी विल गो फॉर दीज थ्री लॉज, आइदर वी विल यूज द ट्रायंगल लॉ और वी विल यूज द पैरेललोग्राम लॉ और वी विल यूज द पॉलीगन लॉ। कब, जब आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं पता होगा और उनको ऐड करना होगा। व्हाट इफ वी नो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देन क्या करेंगे, तो उसके लिए बेटा हम एनालिटिकल मेथड पे जाते हैं, मैथमेटिकल मेथड पे, और वो भी देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म से दूसरी टॉपिक बात करेंगे। ठीक, ये तीन लॉज याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, इसके बहुत एप्लीकेशंस मिलेंगे आपको, कदम कदम पर इसके एप्लीकेशंस वी हैव टू यूज इट। ओके, नाउ द एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो बेसिकली जिसके लिए मैं पूरा डेरिवेशन कर रहा हूं। डेरिवेशन आपसे बोर्ड में नहीं पूछता वैसे, डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूं ना, जिसमें आपसे कहा वेक्टर ए वेक्टर बी एंगल थीटा है। सपोज दैट देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग एंगल थीटा,
सो 99% बच्चा गलती कर देता है उस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच एंगल थीटा को समझने में, आप मत करिएगा. सो दैट वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए and vector b, and these two vectors are inclined at any angle theta. These two vectors are inclined at any angle theta with each other. Now the resultant of these two vectors, this is vector a, this is vector b. So what will be the resultant of these two vectors? It is represented by the third side of the triangle taken in the opposite order. This is resultant r. Now this is what we are going to find out. But mathematically how can we do that? Suppose that this resultant vector r makes an angle alpha with a, because r is a resultant vector. So this resultant vector r makes an angle alpha with vector a. Now how we will find out the value of this r? Let us drop a perpendicular from this point over this. Let us name all these points here: O, P, Q, E. Then okay, what we have done, we drop a perpendicular from Q on OP. OP लाइन जो आपकी जा रही है उस पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है Q से, ठीक है. दिस इज द परपेंडिकुलर. नाउ यू कैन सी, रिमेंबर दिस डेरिवेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, but its cases are very important, but cases only I can discuss with you when you know the formula for the resultant vector. Okay, so that is why I am doing all these stuffs to you. So let what we have assumed, let theta be the angle between what? Vector a and b, first assumption, and resultant vector r makes an angle alpha with whom? Let us take vector a. Then okay, from right angle. Now see, from right angle triangle QEP, QEO, this is the right angle triangle. What is the value of this r? Just writing in the magnitude. Okay, r square, this is the hypotenuse, is equals to OE square plus QE square. This is the value of r square. Now OE square is what? OE square may be written as OP plus P, that is r square is equals to OE can be written as OP plus PE whole square plus QE square. Now you can expand this square, so it will be OP square plus PE square plus twice of OP into PE. Okay, A square plus B square plus last is QE square, then OP into PE and all. Equation number 1. Now again, if you see from the another right angle triangle QEP, just take this one, this is again a right angle triangle, and if it is a right angle triangle, then what? The value of this one, that is QP square, it is equals to square of this plus this, that is PE square plus QE square. Question number 2. Now see over here, PE square plus QE square can be written as what? QP square. Implies that, let me write it over here beta, r square is equals to OP square, it will be written as it is OP square plus, now this PE square plus QE square can be written as QP square, so this we have done, PE plus QE becomes this one. What remains? We have twice of OP into PE, OP into PE. Now these two terms we have to evaluate, हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों का मतलब क्या, OP into PE का. Let us take it as question number 3. Okay, just make a note of all these things so that I can rub it, because I need to more space. Then okay, now see how do we do that. This is O. Now we want OP and PE, means OP we know what it is, A. What about PE? PE from right angle triangle QPE, cos theta जरा सोचो क्या हो सकता है. What is the cos theta? This is theta, this is 90 degree. Okay, so here this is base, this is perpendicular, and this one is hypotenuse. So cos of theta
it is equals to what? PE upon PQ implies that PE is what? PQ cos of theta. Then P is equals to P cos theta, equation number 4. Now just put all these values, we will get our answer. R square is equals to, what is this OP square? OP square is the A square. So it will be written like this, mod of vector A square, और simply ऐसे लिखें, सिखा चुका हूँ, A square plus what is QP square? QP is the vector B square plus twice of OP into P, twice of OP. OP is vector A, that is A, and PE is written as PQ cos theta, and PQ is what? Again B. This A square plus B square plus 2AB, this is the resultant of the vector A and vector B, which is inclined at an angle theta with each other. Then the resultant vector R is equals to A square plus B, R square is equal to this one, or R is equals to what? Under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Remember this beta, this is the mod of vector A, this is the mod of vector B, this is the mod of vector A, this is the mod of vector B. Don't make it confusion, okay? कंफ्यूज मत करना, ये सब मॉड ले रहे हो, यानी सिर्फ अगर दो वेक्टर्स दिए गए तो हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा 30, 40, 50, 15 जो भी आपको दिया गया होगा, ठीक? सो द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स विच इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा इज गिवन बाय व्हाट? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. बहुत आसान फॉर्मूला है और याद कर लो, पूरे 2 साल आपको इसको जूझना है, इससे मदद मिलेगी इससे, ठीक है? दो वेक्टर्स A और B, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. नाउ स्पेशल केसेस अबाउट विच आई एम डिस्कसिंग विद यू. इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर दो वेक्टर्स हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, थीटा 90 होने का मतलब क्या है बेटा? दैट इज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर ऐसे हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा? cos 90 is what? sin 0 0, cos 90 is 0, this whole packet will be 0, result will be what? Under root of A square plus B square. If theta is 0, that means if the two vectors are perpendicular to each other, then the resultant will always comes what? Under root of A square plus B square. Case 2, this is the case 1. Case 2, if theta is 0 degree means that is vectors are parallel to each other. That is the case, na? Theta is 0 degree. Vectors are what? Parallel to each other. Then what? The resultant will be under root cos 0. Cos 0 is 1. The resultant equation will becomes A square plus B square plus 2AB, which is A plus B ka whole square. Resultant will be A plus B whole square. Now square of the root, when it will be solved, it will give simply what? R is equals to A plus B. Let me see, दिख रहा है कि नहीं? मेरे बहुत जगह, ठीक है? The resultant vector R is equals to what? Vector A plus B. When? If two vectors are parallel to each other, then the resultant will be what? A plus B. If the two vectors are perpendicular to each other, then the resultant vector will be, the resultant vector R will be equals to what? A plus B. Anything else? 90. थीटा इज 90 डन. 90 दो ही केस थे, 90 पे है और एक 0 पे. 180 भी एक बना सकते हो. देखो थर्ड केस, इफ थीटा इज 180 डिग्री, 180 मतलब एंटी पैरेलल. इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, दैट इज वेक्टर्स आर, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है? जगह नहीं बचेगी. एंटी पैरेलल हो जाए तब क्या करोगे आप? R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 180. cos 180 इज -1, यानी रिजल्ट विल बी वॉट? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, एंड दिस इज नथिंग, इट इज A माइनस B का होल स्क्वायर. बाहर निकालेंगे क्या बचेगा? A माइनस B. दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू वॉट? A minus B. So these are the three basic concepts, basic special cases. If the vectors are perpendicular, then the resultant vector R will be equals to under root of A square plus B square. If the vectors are parallel to each other, if theta is 0, then the resultant will be what? R is equals to A plus B. And if the vectors are anti-parallel to each other, then the resultant vector R is equals to A minus B. ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और फिर टॉपिक ओवर करेंगे. व्हाट अबाउट द, भाई ये तो देखो R मैंने निकाला ना, अगर ध्यान दो मैंने वेक्टर नहीं लगाया यहाँ पे. The vector sign is missing over here. Why? Because this is the magnitude of the resultant vector. What about the direction? Resultant vector R, as I told you, the resultant vector R is a vector. So, okay, magnitude is R is equals to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. What about the direction?
we don't know yet about the direction. Just see the diagram. This was the vector A, vector B, this was the theta. We says that this vector resultant R makes an angle alpha with the vector A. So we have to find this value alpha. We have to find the value alpha ना, then only we can say, जैसे मैंने कहा कि रिजल्टेंट वेक्टर R A से 30 डिग्री पर है, मैग्नीट्यूड निकालोगे a प्लस बी स्क्वायर वगैरह वो फॉर्मूले से, और 30 डिग्री बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको, डायरेक्शन बता रहा हूँ, वो 30 कौन बताएगा, ये अल्फा बताएगा, तो आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। तो इसी ट्रायंगल में देख लो, नाम तो भाई मैंने पता नहीं क्या क्या लिख लिया था, अपनी मर्जी लिखा था, ये ई याद आ रहा है, ये क्यू था, ये क्या था, ओ कुछ भी ले ले यार, क्या फ़र्क पड़ता है। नाउ जस्ट सॉल्व फॉर द tan अल्फा। tan अल्फा क्या लिख सकते हो, सोचो, tan अल्फा विल बिकम्स व्हाट, ओ ई दिस, फिर गलती कर रहा हूँ, tan अल्फा ही निकालना है, सही था, tan अल्फा एन ई अपॉन, ये लिख सकते हो, दिस अपॉन दिस, पूरे के पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी अपॉन ओ ई, दैट इज एन ई अपॉन ओ ई को क्या लिखोगे भाई, ओ ई को फिर करना पड़ेगा, ओ क्यू प्लस क्यू ई। अब फिर बात आई, क्यू ई आपने निकाला था उसमें, अब इसी ट्राइंगल देखो आपको निकालना पड़ेगा, ये एन ई निकालना पड़ेगा, क्यू ई निकालना पड़ेगा। मान लो ये थीटा है, एक बार इस ट्राइंगल बेटा साइन थीटा के लिए सॉल्व करो, देखो ये थीटा है, 90 डिग्री, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये क्या था आपका वेक्टर बी, ये ऐसे एन ई ऐसे रहने दो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू एन ई अपॉन, ये क्या लिखें उसको, क्यू एन, एन ई अपॉन क्यू एन, तो एन ई की वैल्यू क्या हो गई, एन ई इज इक्वल्स टू क्यू एन साइन थीटा। क्या क्यू एन पता है, बिल्कुल पता है, बी, यानी एन ई इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, बी साइन थीटा, एक चीज़ मिल गई, एन ई मिल गया। ओ क्यू पता है, क्यू ई और ढूंढ लो, अब इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल लो तो क्यू ई मिल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, क्यू ई अपॉन ये क्यू एन, तो कॉस थीटा क्यू एन, ये मतलब क्या, बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, क्यू ई, उठा के वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर तैयार। टैन अल्फा एन ई को बेटा आप लिख सकते हैं क्या, बी साइन थीटा अपॉन ओ क्यू इज ए प्लस क्यू ई इज व्हाट, बी कॉस थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब याद कैसे करोगे, साइन थीटा कौन सा, कॉस थीटा कौन सा, कुछ नहीं, बी क्या है, ये वेक्टर था, बी जो दूसरा वेक्टर था उसके साथ साइन कंपोनेंट लिया था, ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये बेसिक्स है जो डायग्राम मैंने बनाया है, इसको याद रखना है और ये रिजल्ट याद रखना है। आप हर तरीके के डायग्राम ढूंढ जाएंगे, ए है बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो बी साइन थीटा, ठीक, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी और स्पेसिफाई करना चाहो तो इसको अल्फा इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ दिस होल क्वांटिटी, दैट इज व्हाट, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, एंड दिस डायरेक्शन, रिमेंबर ये हवा मत बताना है, ये अल्फा कहाँ से एंगल आपने माना था, वेक्टर ए से। सो द रिजल्टेंट वेक्टर आर इज एट एन एंगल अल्फा विद वे ए, नॉट विद बी, बी से बनाओ कहानी कुछ और आएगी, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दिस इज द डायरेक्शन एंड दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन। सब्ट्रैक्शन की बात अगर करूं तो मैं आपसे पहले बताया था, सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं है। सपोज दैट एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, ठीक है, और बेटा आपसे कहा गया है आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की। तो पहली बात जान लो कि किसी तरीके का वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसी चीज़ नहीं होती। सब्ट्रैक्शन इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडिशन। देखो कैसे करते हैं, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रब कर दें। सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन इज इटसेल्फ अ काइंड ऑफ एडिशन। देखो ये हो गया वेक्टर ए, तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे इस बी का नेगेटिव वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी। कैसा होगा, बिल्कुल इसी के मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट, मतलब कि ये हो गया क्या, माइनस वेक्टर बी। अब हम इन दोनों को सिंपली ऐड करेंगे,
सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। रिजल्टेंट इसका देखो अगर निकालना होगा तो वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। अब ये लिखने में ऐसा लिख देते हैं हम लोग क्या, वेक्टर ए माइनस बी, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ सब्ट्रैक्शन, दिस इज सिंपल एडिशन। तो अगर वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी तुमको निकालना है तो पहले पॉजिटिव वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर बी बनाओगे, ये आएगा, फिर इसको पैरेलल शिफ्ट करोगे, यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल शिफ्ट करके, ये ऐसा। अब देखो दो साइड्स दिख रहे हैं ट्राइंगल की, क्लोजिंग साइड अपोजिट ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ये लिखा जाता है वेक्टर ए माइनस बी, लेकिन है नहीं नेगेशन, ये है सिंपल एडिशन ही, सब्ट्रैक्शन जैसे कोई चीज़ नहीं होती, मैथमेटिक्स में भी नहीं होती, आपको पता है, कहानी पुरानी है सब, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। द ग्राफिकल मेथड, फॉर दैट वी हैव 3 रूल्स, triangle law, parallelogram law and polygon law. And for the analytical method we will go for the mathematical description in which the resultant of the two vectors having angle theta between them, that will be given as r is equals to root of a square plus b square plus 2ab cos theta. If the vectors are parallel to each other, theta is 0, then the resultant will be what, vector r is equals to a plus b. If the theta is 180, that is vectors are anti-parallel, then the resultant will be what, r is equals to a minus b. And if the theta is 90 degree, that is vectors are perpendicular to each other, then the resultant will be given as under root a square plus b square. That's all, that's what we have to learn in this lecture. And one more thing, the angle alpha. The angle alpha will be given as what, b sin theta upon a plus b cos theta. Okay, so these are the basic terms regarding vector addition and subtraction. In the next lecture I will try to explain you the vector multiplication, the product of the vector, which is very important topic. Don't miss that class. Okay, so till then take care, पढ़ाई करते रहिए, bye.